Hello Matujamir, apni hasa Zornbill TV. Olo pomoy pra social media platforms kande Chief Minister ni period laga held biya hua news circulate hua de CM Rio Prangami Baptist Church Council Krodi ke hode sob manuge assurance dishe ki tai Ishwar laga grace aro pratna pra tik ase koigina aro manukan concern tikage tai laga gratitude dishe Rio pra gathering de sob leaders kan ge pratna khando chari thagibole koishe Society no rumors bu social media ko bara how mobile phone bara it's a unudo bu ukele sosipye ke ye mama cha sochre bu social media no puti hoyo Soromobada gazu su temikartsa se ketsa bi legal ho ketsa agibada gazu suripu hobiu bamalo muga khimeko ulatsa siro telephone reachbiu zri noki gimyaga ideu katso Ishidi akela sasaba dari putih hai ketu bangul lagi kebanyakan ukhiba zuwe nyuko kethala mo avis rohdi atok sebazo siro kebanyakan putih kecai nyuko kethala uang kami me terula pernah kami sebade Azeko bette hego kendo hedi matsakabalari uko beje metsu hego mathola go hego la chaba gazala yuko bejewe yuko zabe yuko tseje Indo-Bangla international borders under Tilagao Panchayate Saturday morning dosta Rohingya migrants kangi detained hushe kun Bangladesh te illegally enter korble try krushe detained huade pasta do minor thagishe police report laga hisab te do individuals kando Indian border illegally cross kurigina Bangladesh enter korble attempt kurishe koigina idu Rohingya kando India de extended period kani thagishe aro January 16 din tak kan Dharamnagar de rail pra ahi paigina Kailash shahar jaishe kure taikan border tout ekjun laga core de thagishe kun pra taikan ge logistic support extend krishe police kan secret jankari banai operation launch krishe kun to pra itu dosta Rohingya migrants kan ge detain thushe kun kan currently Irani police station laga custody de ase আমরা এর কাছে সিক্রেট সোর্সে খবর আইছে যে এই 6 জন বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা তারা বলে বাংলাদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই হায়দ্রাবাদ ট্রেনে থেকে তারা আইয়াছরা 13 তারিখ থেকে বোধহয় তারা হায়দ্রাবাদ থেকে রওনা দিয়েছে আর 15 তারিখ থেকে বোধহয় এখানে আয়া বা 15-16 তারিখ তারা আয়া বা একজনের বাড়িতে আসে কইয়া আমরা খবর পাইছি তো অ্যাকর্ডিংলি আমার অফিসার গেছে গিয়াছরা পাও গেছে 6 জন মহিলা সঙ্গে বাচ্চা আছে 4 জন মাইনর বাচ্চা তো আমরা ডিটেইন করে থানাতে লয়ে আনছি এরপরে তার বিরুদ্ধে আমরা স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার করা হয়েছে কেস নাম্বারটা হয়েছে 2025-03 ইরানি পিএস কেস নাম্বার কোন সেকশন হয়েছে 249 বিএনএস এন্ড 3 অফ পাসপোর্ট অ্যাক্ট Central Sarkar pra protesting farmers kange February 14 din Chandigarh de meeting nobile invite krishe kure taika laga demand to discuss kribo it to break through the joint secretary of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Priya Ranjan pra fasting farmers leaders Jagjit Singh Daliwal logode lok kurigina Samyukta Kisan Morcha non-political aru Kisan Mazdoor Morcha kan logode meeting rakhya pichide ola lagase idu meeting de center logode Punjab Sarkar farmer representatives kando Mahatma Gandhi Institute of Public Administration Sector 26 Chandigarh de lobole ase meeting de farmers ka laga pending demands kando discuss hobo aru meeting de Samyukt Kisan Morcha aru Kisan Mazdoor Morcha laga representative kando invite hoise Priya Ranjan pro official letter issue kuriya de highlight kuriye ki
meeting the previous ongoing dialogue laga part ase koigina Supreme Court pa Wednesday in Punjab Sarkar ge farmer leader Jagit Singh Daliwal kun fast onto dead Korea se November 2016 tai laga complete comparative medical reports to dibule janaishe AIMS laga medical board pa opinion lobole karne apex court pa case laga next hearing to January 22nd de post kridishe court pa aru Punjab Sarkar ge Daliwal do fasting Korea homoy proper medical aid dibule janaishe सरकार का जो मैसेज था वो हम लोगों ने डेलीगेशन ने दे दिया है। डल्लेवाल जी से बात हुई है, फोरम के बाकी नुमाइंदों से बात हुई है और तय हुआ कि आगे वार्ता कंटिन्यू होगी। थैंक यू। उन्होंने मेडिकल एड लेने की बात की है और वो आगे बढ़ेंगे, तभी तो स्वास्थ्य लाभ करके हमारे साथ वार्ता में शामिल होंगे। 14 तारीख की डेट दी गई है, 14 फरवरी की वार्ता के लिए शाम में 5 बजे चंडीगढ़ में। थैंक यू। Actor Saif Ali Khan laga stabbing case te accused to Mohad Sariful Islam Shehzad koigina jani paishe kun Bangladeshi national ase aru tailo police pra detained korilushe Deputy Commissioner of Police Dikshit Gedam pra press conference homoy koishe ke accused allegedly Bangladeshi ase kun laga bus te valid Indian documents thaganai aru tai logore pra indicate items kan seize hua pra tailo Bangladeshi national ase koigina indicate kore koigina janaishe police hisab te accused do actor laga kore chor kroble aishe aru stabbing khatna do January 16 din 2 am de hoishe kitia safe opor attack hoigina serious jokham hoishe accused to court te present hobole ase aru police khan custody secret ase safe to stab hua pichire Mumbai laga Lilatwadi hospital de treatment karne admit hoishe aru hospital administration hisab te safe to ita ICU pra olai gina normal room de ase koishe 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें प्राइमरी फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर, कब से रह रहा था? ये एक्यूज पिछले कुछ महीनों से ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a
Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to self-test this earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो और क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। Upcoming Delhi Assembly polls agagide Aam Aadmi Party aro Bharatiya Janata Party majude fresh tussle shuru hoise. Saturday din AAP alleged khushe ki party laga national convener Arvind Kejriwal laga gari do allegedly attack khushe koigina election campaign kuriya homoy. Our BJP alleged khushe ki tinta youth individuals kun Khan New Delhi area laga resident ase taikan do AAP chief laga gari par allegedly hit hoise koigina party do door to door campaign ja homoy. Itu alleged khatna par duita party majude khota laga war olaise kure taijun ekjun ge blame kuriya shuru hoise. निंदा की जाए उतनी कम है। भाजपाई अपनी बौखलाहट अब इस तरह जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में एमएचए ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थ्रेट परसेप्शन है। ये भी कहना चाहिए था कि भाजपाइयों से ही है। आप देखेंगे कि बार बार इन्होंने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले कराए। अब परवेश वर्मा एकदम बौखला गए हैं। जब वो कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि सोने की चेन बांट दी, 10,000 रुपए जो बांटने थे उसमें से 1100 बांट दिए, जो जूते बांट दिए, चप्पल बांट दिए, बट फिर भी पूरा का पूरा झुकाव अरविंद केजरीवाल जी की तरफ है। तो ये उन्होंने अपनी बौखलाहट जाहिर की है। आपने कभी भाजपा को सच बोलते सुना हो तो बताइए। भाजपा ऊपर से लेकर झूठी और महाकरप्ट पार्टी है। भाजपा के ही गुंडों ने, पिछली बार भी आपको याद होगा कि कैसे एक एमपी ने, तेजस्वी सूर्या ने एक मॉब लीड करके अरविंद केजरीवाल जी के घर पे अटैक कराया था। आपको याद होगा कि हाल ही में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनके ऊपर भाजपा जितने भी अटैक हुए वो सबका लिंक भाजपा से निकला। आज भी भाजपा के गुंडों ने, परवेश वर्मा के गुंडों ने यह हरकत की है। हमने देखा किस तरीके से पिछले कई बार भी केजरीवाल जी के ऊपर अटैक हुआ, तो क्या आप लोग कोई लीगल एक्शन लेंगे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली वी विल परसू जो भी लीगल रेमेडी अवेलेबल होगी, बट ये छोटी बात थोड़ी है। एक अरविंद केजरीवाल जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स द कंट्री हैज टुडे। उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। चलेगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही डीसीपी से बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल का जो आरोप है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। पहले उन्होंने कहा बाहर के गुंडे आए हुए हैं, तीनों स्थानीय हैं, यहाँ के वोटर हैं, इसी विधानसभा के वोटर हैं, उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ी है। अरविंद केजरीवाल अपनी हार से डर कर अपने ड्राइवर को इशारा कर रहे हैं कि सामने जो मेरे से सवाल पूछे उसको उड़ा दो, मेरी गाड़ी से उड़ा दो। उनके अंदर में ये जो है ना गरूर, ये जो घमंड है, ये उनको 5 तारीख को दिखाई देगा। तो ये भी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है आप पार्टी, आप लोग कॉन्स्पिरेसी इतना कर रहे हो, और जो भी एक पत्थर वाला वीडियो भी दिखा जा रहा है। देखिए, जब तीनों के ऊपर में गाड़ी चढ़ गई है, उनको मारा, उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ी, उसके बाद में लोगों में तो स्थानीय गुस्सा है। तीनों को गाड़ी चढ़ाने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो जो स्थानीय गुस्सा आएगा नहीं आएगा। से ये सीट हम लोग बड़े मार्जिन से जीतेंगे और दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे प्रचंड बहुमत के साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित की है, 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों के लिए घोषित किया है, संजीवनी स्कीम घोषित किया है
और जितनी भी हमारी योजनाएं पहले चल रही थी फ्री बिजली पानी की, वो सब जारी रहेंगी। तो इसके ऊपर विश्वास करके लोग वोट देंगे। और कल बीजेपी ने झूठ का एक संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के बारे में सब जानते हैं, वो झूठ और झगड़ा वाली पार्टी है, इसलिए उनके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा है। और प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी जीतेंगे और पालम से यहाँ जोगिंदर सोलंकी जीतेंगे। आज बौखलाहट की हालत देखिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के लोगों ने अभी जो जानकारी मिली, मैं अभी सभा में था, कि उनके ऊपर पत्थर से हमला किया। ये गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हो दिल्ली का? हमला करके चुनाव जीतना चाहते हो? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता न तुम्हारे आगे कभी झुके हैं न झुकेंगे। ऐसे कायराना हरकतें क्यों करते हो? उससे क्या हासिल हो जाएगा? तो इसलिए ये कायरों की पार्टी है बीजेपी, इनके सामने हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं है। जो केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ है उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं, अगर उनके शरीर में खरोच भी आया तो इसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी डॉक्यूमेंट्री को रेवड़ियों से और बड़ा करके परोसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी। वो सब तो विरोध करते थे उसका, हमेशा मजाक उड़ाते थे। तो जिस बात का विरोध किया है बीजेपी ने, उसको वो क्या लागू करेंगे? आम आदमी पार्टी के क्या लागू करेंगे बताइए? क्यों ये डरते हैं इतना? हमारी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से रोकते हैं, हमारा प्रचार करने से रोकते हैं, हमारी योजनाओं के विस्तार करने से रोकते हैं, हर काम में तो रोकते हैं। रहा है, डॉक्टर्स देख रहे हैं, अभी अभी एक्सरे वगैरह सारे टेस्ट्स हुए हैं। तीनों व्हीलचेयर पर बैठे हुए मिले मुझे। ये जो आज केजरीवाल जी ने इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से अपनी गाड़ी 3 युवकों पे चढ़वा दी, ये ओछी राजनीति का परिचय है। ये साफ दिखा रहा है कि वो अपनी आगामी हार से भयभीत है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपसे सवाल करेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड केवल झूठ, छलावे और टूटे हुए वादों का होगा, तो शायद जनप्रतिनिधि का इन सवालों से भागना भी लाजमी लग रहा है। केजरीवाल जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि ये युवक तो आपसे केवल आपके 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड का ही सवाल पूछ रहे थे। यही पूछ रहे थे कि आप 1 दशक से यहाँ पर आए क्यों नहीं हैं। ये तो आपकी गृह विधानसभा है, ये सब तो आपके वोटर्स हैं। इनका आपसे सवाल पूछना बहुत लाजमी है, पर आपका इस तरह भाग जाना और अपनी गाड़ी इन पर चढ़ा देना, ये तो आपराधिक है। इससे इतर आरोप तो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल ये लगा रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। एक वीडियो भी शेयर किया उन्होंने जिसमें वो ईंट का जिक्र कर रहे हैं कि ईंट उनकी गाड़ी पर चली गई। केजरीवाल जी वीवीआईपी हैं, आम आदमी के आवरण में एक बहुत ही खास आदमी हैं। पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन लेके जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 3 युवकों से वो भयभीत हो गए। इर्द गिर्द पंजाब पुलिस के सारे सिपाही उनके तैनात हैं और पूरा घेराबंदी करके चलाते हैं। आपने भी देखा होगा मीडिया में वो विजुअल साफ दिखते हैं, जहां केजरीवाल जी के इर्द गिर्द एक ह्यूमन चेन बनाकर पंजाब पुलिस के सिपाही चलते हैं। ऐसे वीवीआईपी को 3 युवकों से डर क्यों लग रहा है? इसलिए क्योंकि उन्होंने उनसे सवाल पूछ लिए और 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड में केजरीवाल जी के पास केवल झूठ, छलावे और टूटे हुए वादों के अलावा दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। क्या बीजेपी आपसे ये सवाल कि बीजेपी क्या इसमें लीगल एक्शन आगे किस तरह से लेने वाली, क्या कुछ एफआईआर वगैरह? हमारी पार्टी विचार विमर्श कर रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई कर। इंडिया लगा मेंस खो-खो टीम दो खो-खो वर्ल्ड कप 2025 लगा फाइनल्स जाइशे साउथ अफ्रीका के 60/42 दे हराइगिना इंडिया लगा टीम कोच अश्वनी कुमार शर्मा खुशी की ताय खान इटू लेवल तक जबो कोइगिना भाबिया नाय कोइगिना और कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस खुशी की टीम दो वर्ल्ड कप जितिबो कोइगिना कुन खान फाइनल्स करने प्रिपेयर्ड असे। क्या बोलेंगे इसके बारे में? यही कहेंगे जो हमारा सपना था, सपना तो क्या पहले हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि खो-खो यहाँ तक पहुंचेगी और वो हमारा सपना पूरा हुआ और फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भारतवासियों
को कि वर्ल्ड कप भारत की झोली में होगा। बिल्कुल सर, इस मैच में थोड़ा कड़ा मुकाबला हुआ। तो मैंने जितना उम्मीद से ज्यादा दक्षिण अफ्रीका ने फाइट दिया, एक टाइम पे वो लीड कर रहे थे। क्या बातचीत हुई जब आपने सेकंड हाफ जब देखे तो आपकी धड़कनें बढ़ी थी? धड़कने तो नहीं, हाँ, लेकिन ये था कि जब फाइनल सेमीफाइनल में टीम आई है तो नेचुरली एक अच्छी टीम है। और आपने देखा होगा कि इंडिया टीम के मुकाबले उनके हाइट, उनकी स्पीड वगैरह काफी अच्छी थी। उन्होंने जो ट्राई किया, पोल डाइव किए, स्काई डाइव किया, उससे अच्छा मतलब गेम के लिए अच्छा रहा। और वही कारण था कि बहुत क्लोज आज मुकाबला रहा, लेकिन कॉन्फिडेंट थे हम लोग। और अंत जो हुआ, रिजल्ट जो हुआ वो टीम इंडिया ने। फाइनल के लिए कैसी तैयारी है? फाइनल के लिए अच्छी तैयारी है। मैं हर बार बोलता हूं कि हमने नेपाल टीम के साथ अभी 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज खेली है नेपाल में जाके, और उनका हमने पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज किया हुआ है, किससे कैसे क्या करना है, किस प्लेयर के लिए किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार है। और ये रणनीति आपको कल मैच में ही दिखाई दी। এতিয়া কাৰণে মানহি চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি।